Hello everyone, we have Dr. Laiba Zainab with us who will be telling us about skin and how to take care of our beautiful skins. Dr. Laiba, would you like to tell us something about yourself, please? My name is Dr. Laiba and I'm graduated from Alava Iqbal Medical College and I've done my house job with my majors in dermatology and plastic surgery. Okay. Right now I've done my FCPS and I'm a plastic surgery resident and my first is about to end. And I'm also practicing aesthetics in phase 6. Okay, perfect. Right, so we'll be talking about comedones first. As a layman, when it comes to skincare, could you please explain to me, as if I were a little kid and our audience, could you explain it to us what comedones are and what are its different types, please? Okay, comedones are basically the clogged pores. जब भी कोई चीज़ pores के अंदर आपने induce हो जाए, oxidized by air and the dirt, which is said to be comedones. They have like 3 types or 3 or 4 types में हम इसको further divide कर सकते हैं. Like whiteheads, blackheads, melia, and acne comedones. तो ये 4 to 5 types आगे further divide हो जाता है. If that is beneath the skin, that is called closed one, and if it is above the skin, that is called open. और above the skin में mostly white heads होते हैं और beneath the skin में black heads आ जाते हैं. ठीक है. और जो मीलिया भी होता है, मीलिया like इस तरह से differ करता है कि वो pop नहीं हो सकता. White heads pop हो जाते हैं और मीलिया इस तरह से differ करता है कि वो pop नहीं हो सकता. वो भी beneath the skin होता है, लेकिन that is unpoppable और उसको exfoliation से ही इन सबको उस तरह से ही आप खत्म कर सकते हैं. Right. So what I've noticed is that comedones or blackheads, I've noticed them more because I don't know much about whiteheads. So blackheads, they usually happen around the region close to your nose. Is there any particular reason as to that why that happens? Because यहाँ पे sebum production बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे sebaceous glands present होते हैं और ये T-zone आपका जो एरिया आ जाता है, यहाँ पे excess oil होता है. ठीक है. एक्सेस ऑयल की वजह से आपके सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इसलिए हमेशा वो यही वाला डर्माटॉम फॉलो करता है. कोमेडोन्स के लिए ब्लैक हेड्स हो गया तो यही, एक्ने भी होगी तो यही डर्माटॉम की फॉर्म में आपको वहाँ तक जाता है, लाइक नोज, चिन एंड दिस एरिया. Perfect. Are there any risks involved in me taking care of my blackheads at home? Yes, there are so many risks involved. If you are doing it like physically, popping it out, or it can cause rupture the skin and it can damage it. It can lead to the dark spots as well, क्योंकि आप जब भी आप pop out करने की कोशिश करते हैं तो वो एक spot छोड़ जाता है, bleeding होती है और it's very painful procedure. Okay. And I've seen people taking care of blackheads through nose strips. I think they're called nose strips. Yes. Yeah. And are there any risks involved when it comes to using a nose strip? There are risks. एक तो ये इतना ज़्यादा effective नहीं है treatment nose strips वाला. पेनफुल है, फुल तरीके से क्लीनिंग नहीं होती है, एक तो निकल आते हैं, ऊपर से ड्राइनेस कॉज करता है, पैचनेस कॉज करता है. तो नोज स्ट्रिप्स से बेहतर है कि आप कोई भी अच्छा क्लिनजर यूज़ कर लें, इंक्लूडिंग सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, एसिलिक एसिड, जिसकी वजह से ये एक्सफोलिएशन में हेल्प हो जाती है और वो क्लीनिंग हो जाती है. Right. So these different acids and chemicals that you mentioned, I'll just call them chemicals. Yeah. Are there any risks involved in using them? Like, are there any particular cases in which I should use a certain product, and then there are certain cases in which I should use another product? These products are safe to use. Okay. But if you go for the medicine, like oral ointments में आ जाते हैं, oral medicines में आ जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा severity है इनकी और ये पील्स की वजह से भी नहीं जा रहे, केमिकल्स यूज करने की वजह से भी नहीं जा रहे, तो व्हाट यू कैन यूज एनी ऑइंटमेंट विच इंक्लूड्स ट्रेटोनिन, आइसोट्रेटोनिन, वो यूज किए जा सकते हैं. वो इफेक्टिव होते हैं. Right, and everyone can take these medicines. Not everyone, but ये हमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये हम रेकमेंड नहीं करते हैं. Okay. बाकी it's safe to use according to prescription. Always consult a doctor for the medicine if you are using it. Other than that, बाकी चीज़ें बिल्कुल safe to use है जो कि मैंने mention की हैं. Okay. And the clinical procedures that are involved, could you please mention them? What type of
clinical procedures are involved in taking care of comedones? There are so many procedures involved. For example, आप microdermabrasion करवा लें, dermabrasion करवा लें, वो एक suction tool के साथ यूज होती है। एक तो उसमें से सारे क्लोमेडॉन सब कुछ sucked out हो जाता है और सीरम इंड्यूस होता है स्किन के अंदर। उसके अलावा आप कोई सा भी केमिकल पील ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा है जो कि डर्माब्रेशन से भी नहीं जा रहा है, तो आप केमिकल पील लेंगे और वो केमिकल पील लगवा लें सैलिसिलिक का, वो अकॉर्डिंग टू आपको डॉक्टर बताएंगे। ये एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होता है। ठीक हो गया। Well, many people, including myself, we are very lazy when it comes to our skin. So, are there any preventive measures जो कि मैं घर में बैठ के ले सकता हूँ कि अच्छा मैंने इस टाइप का खाना नहीं खाना, मैंने इस टाइप की चीज़ें नहीं खानी वगैरह, ताकि वो जिसकी वजह से मुझे ब्लैक हेड्स ना हो? आर देयर एनी प्रिवेंटिव में एक तो स्किन केयर रूटीन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि 15 स्टेप स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए। इट कुड बी लाइक 3 स्टेप बेसिक स्किन केयर रूटीन, जिसकी वजह से आपको ये नहीं हो सकते हैं। आपके डाइट बहुत इंक्लूड करती है इन सब चीज़ों में। आपका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करता है कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। और यस, ऑल्सो स्मोकिंग इज द बिगेस्ट कॉज जो कि ये सारी चीज़ें ट्रिगर करता है। ड्रग्स, स्मोकिंग एंड इफ यू आर गोइंग आउट विदाउट प्रोटेक्शन, तो ये डर्ट आपके ओपन पोर्स होते हैं, ऑब्वियसली आपकी स्किन के अंदर जाती है और फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। सेबेशियस ग्लैंड्स में डर्ट जाती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Perfect. So, right, so this next topic is amongst my favorites because they are famous for showing up when they are not wanted, the unwanted guest. जब भी कोई एक बड़ा इवेंट आता है उससे पहले ये आ जाते हैं, they're like, hey, here we are. I'm talking about pimples. Could you explain to me what pimples are and what are the different types of pimples, please? Okay, pimples are symptoms of condition. It is not itself a condition. It's a symptom of acne. और pimples को हम further काफ़ी 3-4 चीज़ों में आगे हम इसको लेके जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, which is like papules, pustules, acne vulgaris, nodular acne, तो ये आगे further cystic acne, तो further divide होते रहते हैं। Bacterial acne भी आ जाती है, तो yes. So the major difference between a pimple and an acne is that pimple is actually a symptom of an acne. Yes, actually. Perfect. और इसके मुख्तलिफ causes या triggers जो आप बता सकती हैं कि if you do this, if you do that, इसकी वजह से ये होगा. If you could shed some light on that, please. There are so many causes for pimples. एक तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया की वजह से आपका कॉज होता है। अगर आप ऐसे हाथ अपने फेस पे बार बार लगा रहे हैं तो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है, आपके ओपन है आपके पोर्स और वो अंदर जा रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है और आपको पिंपल्स आ रहे हैं उसकी वजह से। दूसरी चीज़ ये कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस कैन प्ले मेजर रोल इन दैट। ठीक है, और बिग इवेंट्स की अगर बात की जाए तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं ना। अगर आप एक्साइटेड हो रहे हैं, आपके में कोई एक सर्टेन हार्मोन है जो कि जिसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो भी कॉज कर रहा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ चलो किसी इंपॉर्टेंट डे से पहले हमें पिंपल्स आ जाते हैं। हाँ, सही है। So yes, this is the reason. And does it have anything to do with genetics? Yes, also genetic फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। एक्नी अगर किसी जनरेशन में है तो ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन में आपको वो चीज़ आती है। अगर किसी में एक्ने वल्गैरिस, सिस्टिक एक्नी है तो एवरी थर्ड जनरेशन कैन लाइक हैव द सिम्पटम्स ऑफ एक्नी। Okay. Again, any particular reason as to why they mostly occur close to the chin and the jawline? Because of the sebaceous glands, because of a lot of sebum production there, और यहाँ पे आपके टी जोन पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट होता है और वहाँ पे एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, ऑयल जब आपकी स्किन में डर्ट जाती है, ऑयल जाता है तो रिएक्ट करके आपको पिंपल और उसी डर्माटोम के अंदर आपको उसी जगह पे ज़्यादातर अफेक्ट दिखते हैं। चिन पे ही होते हैं ज़्यादातर और नोज के अराउंड होते हैं। Right. So a while ago you mentioned something about the different types of pimples and acne. You said something about papules. I hope I got that right. Yeah. Okay. Could you explain to me what a papule is, or are there any different types which you mentioned? I've forgotten their name. If you could just mention them again and explain them a little, please. Yeah. Papules and pustules basically. तो एक तो ये
पिंपल्स ही होते हैं बेसिकली। जो पेप्यूल्स होते हैं इट्स विदाउट एनी वाइट कास्ट और पस और येलो कास्ट, और जो पेस्ट्यूल्स होते हैं उसमें हमेशा पस प्रेजेंट होती है। तो ऑलवेज जो भी जिसमें पस होगी वो पेस्ट्यूल होगा और जिसमें पस नहीं होगी वो पेप्यूल होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और if I want to take care of these different types of acne at home, let's say I want to take care of pustules at home, will I be able to do it? Like, can I just pop them and will I get rid of them? No, you cannot do it by like you cannot pop these things out क्योंकि ये आपको spotting देती है। ठीक है। What you can use, you can follow the certain routine, salicylic, mandelic acid, कोई से भी जो सीरम इस चीज़ को कंट्रोल कर सके वो आप यूज़ कर ले। हाँ, लेकिन वो कम्प्लीटली इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, वो आपके रिस्क उसको लो कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आप इससे आपको एक कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर को। ठीक है, तो मतलब मुझे सर्टन ट्रीटमेंट। हाँ, सॉरी, तो वो मतलब ये कि if I want to use certain serums and products on my skin at home, तो उससे probability तो कम हो जाएगी। Obviously, Okay, ये okay. चीज़ तो है। Right, so could you develop on that little कि किस टाइप के products अगर मैं यूज़ करूँगा तो probability कम होगी या? सबसे पहले अगर पेप्यूल्स हैं बेसिकली इसमें पस नहीं होती है तो आप सबसे पहले मैंडेलिक एसिड की तरफ जाएं, ठीक है। वो यूज़ करना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर आप सैलिसिलिक पे जा सकते हैं, फिर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ इट्स वेरी गुड कि अगर आप नाइसिनामाइड इंक्लूड कर लें। नाइसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो वो सैलिसिलिक एक्ने और ये पिंपल्स रिड्यूस करता है और नाइसिनामाइड पोर्स क्लोज करता है, तो वो दोनों ट्रीटमेंट साथ हो जाए। पोर्स क्लोज होंगे तो बैक्टीरिया नहीं जाएगा, एक्ने पिंपल कॉज कुछ भी नहीं होगा। So it's a very safe combination to use, salicylic with niacinamide. Right. Again, this is just me taking care of it in order to reduce the probability of it happening. और अगर मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहता हूँ कि मैं मतलब आज के बाद मेरे एक्ने आए ही ना, तो उसके लिए are there any procedures for it? Procedures for it, yes, there are procedures. जो कि ऑब्वियसली आप घर पे नहीं कर सकते हैं। आपको रूटीन एक फॉलो करनी पड़ती है, डर्माब्रेजन्स करानी पड़ती हैं, क्लीनिंग करानी पड़ती है, पील्स देने पड़ते हैं, केमिकल पील्स इंक्लूडिंग सैलिसिलिक, मैंडेलिक और जो भी लाइटनिंग पील, लेजर डायनामिक पील, ये आपकी एक्ने खत्म कर सकते हैं। Right. So, is there any advice on preventing a future breakout of acne? फ्यूचर ब्रेकआउट अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ देखनी चाहिए कि आपको टेस्ट कराने चाहिए कि आपके अंदर किस चीज़ का मसला आ रहा है, उसको फिक्स करना चाहिए। यू नीड टू कट ऑफ शुगर एंड फैट्स एंड और यू हैव टू, अगर कोई स्मोकर है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे इस चीज़ के, स्मोकिंग कैन कॉज मोर इनटू एक्ने। प्लस अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है इन द मेल्स तो स्किन के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह कॉज कर सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड फीमेल साइड पे किसी को PCOS इशू है तो वो ब्रेकआउट्स बहुत हैवी सीवियर वाले कॉज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्थ इश्यूज फिक्स करने होंगे एज वेल एज स्किन केयर रूटीन। ठीक है, ठीक है। So you mentioned something about a more aggressive form of acne. You mentioned nodular acne and cystic acne. Could you please develop on that a little, and how can I take care of them if I, God forbid, if I have them? Okay. Yeah. Cystic acne are basically caused by an extremely dangerous bacterium called C. bacterium, and also as well as nodular acne. Okay. तो इनमें जो major difference है ना वो सिर्फ ये है कि जो nodular है वो सिस्टिक की एक्सट्रीम फॉर्म है। दोनों चीज़ें सेम ही हैं somehow, बट जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो नोड्यूलर है, उसमें वो बहुत पेनफुल होती है, उसमें स्किन के अंदर नॉट्स लग जाते हैं, नोड्स बन जाते हैं, तो वो नोड्यूलर एक्ने होती है। उसको आप घर पे कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैव टू टेक मेडिसिन्स फॉर इट, अदरवाइज वो रूटीन आप ऑब्वियसली स्किन केयर फॉलो करें, लेकिन आप कंसल्ट डॉक्टर पे करना पड़ता है। So that's all from our side, folks. As a wise man once said, be picky with your friends, your food, and your skincare. That's all. Thank you for joining in. Thank you, Dr. Laiba, for giving us your precious time. That's all. Ciao.